Yes, dear students, now we are going to do an energizer activity called Pick Bingo. So I hope you all guys are ready. Herein, I will show you some picks and you have to guess the expression or the idiom. So what's it on your screen? Can you guess it? The phrase or idiom? Quickly type it in the chat box. What can you make out of the pick? The pick is your clue. The first one is bullseye. And what about the second one? Can you see the elephant? So what the pick number 2 is all about? Quickly type in your responses if you get the answer. It's a tricky one, but very obvious. It's elephant in the room, as you can see. And the last one, what can you make out of the picture? The third one, quickly try and guess the correct answer. We are waiting for you. Yes, it's paper tiger. Paper tiger. Yes. But Manish, in our Yes. story, we don't have a paper tiger, we have real tigers in our story. Yes, we So, have real tiger. A paper tiger is someone who is not a threat but looks threatening. yeah, It's not exactly. the case in our story. All these animals that were shown in this activity will have relevance in the story, and you will see how. Let us begin now. Yes. So coming straight to the story and a little bit about the author. Ramaswamy Krishnamurthy, he was born on September 9, 1899, and he's better known by his pen name Kalki. He was an Indian writer, journalist, poet, critic, and independence activist. He was named after Kalki, the 10th and the last avatar of the Hindu god Vishnu. His writings include over 120 short stories, 10 novellas, and 5 novels, 3 historical romances, editorial and political writings, and hundreds of film and music reviews. You might be wondering, what is novellas? Let me just underline it for you. Novellas. You see, novella is between a short story and a novel. It's bit shorter than the novel and it's bit longer than a short story. So you can say in between a short story and a novel, it's novellas. So that's what he has written. And he has written about editorial and political writings and hundreds of film and music reviews. Let me just erase it and move ahead. Okay, so as the name suggests, the the Tiger King. If there is a king, there has to be a kingdom, and you get some idea about the kingdom. Bahubali, we have seen Bahubali, the kingdom. So whenever there is a king, there has to be a kingdom, and the story is about this king and his kingdom. And without much ado, I would start the story. I am so excited to start this story written by Kalki. And whenever there is a king, the entry of the king has to be very grand, which you can very well see from the beginning. शुरू से ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे उस किंग की जो एंट्री है, इट इज वेरी ग्रैंड. And the king is the Maharaja of Pratibandhapuram. Pratibandhapuram is the place, उस जगह का नाम है, उस किंगडम का नाम है जहाँ की ये राजा की कहानी है. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. So here is our Maharaja of Pratibandhapuram, and you know it well कि जब राजा की एंट्री होती है तो आपने कुछ मूवीज में, सीरियल्स में या बुक्स में पढ़ा होगा
कि उनकी एंट्री पे किस तरीके से उनका नाम लिया जाता है, तो ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्याग्रह संहारी महाराज धीराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर. Look, with so many lofty titles, his name is actually Jilani Jangjang Bahadur. But do you think something odd with these lofty titles? Titles आप जानते हैं, महाराज धीराज विश्वभुवना, तो राजा को खुश करने के लिए उनके नाम के से पहले कई तरह के टाइटल्स लगाए जाते थे. और पर इनके टाइटल में डू यू फाइंड समथिंग ऑड? सर जिलानी जंग जंग बहादुर और उसके बाद MAD, ACTC, CRCK. MAD अगर हम बात करते हैं, इट्स मैड. CRCK is something like as if they want to write something crack. But this name is often shortened to Tiger King. So author is actually setting a tone. शायद बिगनिंग से ही आपको समझ में आएगा कि ऑथर जो है एक टोन सेट कर रहे हैं ह्यूमर की, आपको कुछ ह्यूमरस प्रेजेंट कर रहे हैं. उसी में जिसी तरीके से उन्होंने नाम के जो टाइटल है उसमें MAD मैड लिखा, ACTC जिसका कोई मीनिंग नहीं है, CRCK जिसको शायद आप अगर जल्दी से पढ़ें तो यू कैन से क्रैक. क्या वो राजा के बारे में कुछ ऐसा आपको बताना चाह रहे हैं? Is he want to or is he trying to ridicule? क्या वो कुछ मजाक उड़ाना चाह रहे हैं या कुछ सरकाज़म है इस टाइटल में? एंड ऑफ कोर्स देयर इज पन. पन कैसे? जैसे आपको याद होगा एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में जब हमने पढ़ा था पन के बारे में, तो उन्होंने क्या बताया था उस चैप्टर में हमने पन के बारे में. मैं इसको थोड़ा सा आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ. mad, and this one CRCK. क्या है ये? पन. हाउ कम? बिकॉज यहाँ पे एज ए टाइटल आपको शो किया गया है, पर जब आप इसको दूसरे फॉर्म में इसका दूसरा मीनिंग देखें तो इट मे मीन एज मैड और क्रैक, एज इफ he is talking about a person who seems to be crack, who seems to be mad. But how? कैसे? वो अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के. और एक और खास बात है, राइटर जो हैं एक शॉक वाली सिचुएशन बार बार आपके सामने दे रहे हैं. वो कैसे? वो आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस आपकी राइज करते हैं नाम के साथ इतने टाइटल्स लगाने के बाद. इमीडिएटली ही सेज द नेम इज ऑफन शॉर्टन टू टाइगर किंग. मतलब एज इफ अरे जाने दो, लीव इट, फॉरगेट इट, ये सारे टाइटल्स छोड़ो, असली में आ जाओ टाइगर किंग. सो आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. इस एज की मैंने, मेरा मकसद ये है कि मैं बताऊं आपको कि उनको टाइगर किंग क्यों कहा गया. I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. So he doesn't want to kill the suspense and the climax. वो जो सस्पेंस है स्टोरी का वो उसको मेंटेन करना चाहते हैं. वो नहीं चाहते कि इसकी इस स्टोरी का जो क्लाइमैक्स है, जो सस्पेंस है, वो अभी ब्रेक हो. और वो कहते हैं उसकी खातिर इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर. स्टूका बॉम्बर बेटा उन दिनों में जो एयरक्राफ्ट्स होते थे, जो जर्मन एयरक्राफ्ट्स थे, उनको जो है स्टूका बॉम्बर कहा जाता था. लेट मी जस्ट शो यू स्टूका बॉम्बर. Okay, he is saying that even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. मुझे बिल्कुल हिला नहीं सकता इस ट्रैक से. कौन सा ट्रैक? जो ट्रैक उन्होंने पकड़ा है कि वो टाइगर किंग के बारे में बताएंगे, उसके बारे में रिवील करेंगे कि उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा. और he says the Stuka if it likes can beat a hasty retreat from my story. वो चाहे तो जल्दी से मेरी स्टोरी से बाहर निकल जाए. तो कैसे निकल जाए? लेट अस सी.
second. Okay, here is the Stuka bomber. So this was an effect to give you an idea how these German aircrafts, the Stuka bombers, which were used in the Second World War, they were used as dive bombers. So, but our author is not afraid of this Stuka bomber. He says it may take a hasty retreat. जाना है तो जाए, पर मैं अपने ही तरीके से कहानी सुनाऊंगा. And he begins the story. Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the king. अब देखिए यहाँ पे भी again वो कुछ आपको ऐसी फीलिंग आएगी as if there is a kind of exaggeration. He says imperative. Imperative, something which is very urgent. So he says it is very important, it is very urgent that I must tell you about the Tiger King, that how did he get his name. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage. जो भी कोई मिलेगा उसको दिल करेगा कि इस इनडोमिटेबल करेज. अब आप ये देखिए कि कितना वो टाइगर किंग के बारे में एग्जैजरेट कर रहे हैं. ये उनका एक स्टाइल है कि हर बार आपकी एक्सपेक्टेशंस को, आपके इंटरेस्ट को वो रेस करते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं और इमिडिएटली एक शॉक देते हैं. उसके बाद कुछ ना कुछ वो ऐसा लिखेंगे जैसे पहले उन्होंने नाम में बताया, टाइटल्स देके इमिडिएटली ओ फॉरगेट इट, टाइगर किंग. ऐसे ही स्टूका बॉम्बर के बारे में बताया एंड देन ही सेज अरे जाने दो स्टूका बॉम्बर के, मैं परवाह नहीं करता. अब इसमें यहाँ पर टाइगर किंग के इनडोमिटेबल करेज. इनडोमिटेबल करेज इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी डिफीटेड फेस टू फेस, बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. तो अगेन आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी डेवलप कर दी कि आप लोगों यस आई वांट टू मीट टाइगर किंग, बट इमीडिएटली व्हाट ही सेज अभी मुश्किल है, अब पॉसिबल नहीं है. और वो क्या कह रहे हैं, एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसे भरत ने अपने बड़े भाई राम से उनके फादर दशरथ के लिए कहा था, द किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड. फाइनल अबोर्ड वैसे तो इसका मीनिंग नेक्स्ट लाइन में ही दे रखा है, बट इट्स द फाइनल रेस्टिंग प्लेस व्हिच मींस दैट in other words he's saying the king is, the tiger king is dead. तो अगेन आपके बारे में, आपके मन में बड़ी क्यूरियोसिटी जगा दी कि टाइगर किंग कौन है, और नेक्स्ट ही लाइन में वो क्या कह रहे हैं, द टाइगर किंग इज डेड. द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट. अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया उनकी डेथ को. वो अभी वो बताना नहीं चाहते कि वो क्या था. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज. अब अगेन वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को बड़ा राइज कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं कि उनकी जो डेथ थी वो बड़ी फैंटास्टिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, उनकी कहानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. तो कई बार ये जो चीजें हैं वो किस लिए की जा रही है, एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, थोड़ा उसके ऊपर उसका मजाक बनाने के लिए. क्योंकि कैसे मजाक कैसे बनाते हैं ना, जैसे एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज को फैंटास्टिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो कई बार जैसे किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं कहते अरे यू आर सो इंटेलिजेंट, किसी को स्टूपिड शो करने के लिए, बताने के लिए कि नहीं तुम ये क्या बात कर रहे हो. अगर किसी ने कोई सिंपल सी बात को एक्सप्लेन कर दिया तो कहते अच्छा बड़ा समझदार है तू. तो बेसिकली यहाँ पर वो इस ह्यूमर एलिमेंट को, सरकाज़म को, ये सब जो टर्म्स हैं ह्यूमर, सरकाज़म, सटायर, दे आर ऑल ऑलमोस्ट कोरिलेटेड. ऑलमोस्ट इनका मीनिंग, दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहन है, इनके मीनिंग मिलते जुलते हैं. अल्टीमेट इनका जो मीनिंग है वो ये है टू ब्रिंग आउट सम फॉल्ट. वो इसके थ्रू कोई फॉल्ट को बताना चाहते हैं, ये एक रियलिटी को बताना चाहते हैं. उसके लिए इस तरह की लिटरेरी डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जाता है. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the king would actually have to die. अब वही हुआ
बहुत आपकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा के कि वो तो बड़े खास राजा थे और उनकी मौत भी बड़े खास तरीके से हुई, और उनकी तो मौत के बारे में एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले ही कह दिया था। क्या कहा था? द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। अब हैरानी वाली बात तो यहीं पर आती है कि इतना एग्जैजरेशन और आपका इंटरेस्ट को इतना इग्नाइट करके, एक्सपेक्टेशंस करके, वो क्या सीक्रेट बता रहे हैं यहाँ पे, या क्या खास बात बता रहे हैं, स्पेशली एन एस्ट्रोलॉजर? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर से तो कैसे उम्मीद की जाती है कि वो ऐसी खास चीजें बताएं जो आपको ना मालूम। और ये कौन नहीं जानता कि जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है। तो ये इसमें क्या हिडन चीज है? तो दिस इज समथिंग आयरॉनिकल, दिस सिचुएशन इज आयरॉनिकल कि एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि इसको एक दिन मरना होगा। और वो कैसे बता रहे हैं, लेट्स सी। क्या कहते हैं वो? द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट दिस इज अ सीक्रेट। यू नो व्हाट? बट के बाद he bites his lips as if he wants to hide some secret, जैसे कोई ऐसी खास बात है जिसे वो बताना नहीं चाहते। बट when he is compelled to say, जब उन्हें मजबूर किया जाता है कि नहीं नहीं बताइए बताइए क्या बात है, तो क्या कहते हैं? दिस इज अ सीक्रेट which should not be revealed at all। अब सीक्रेट सुन के हमें लगता है कि पता नहीं क्या खास बात है, क्या सीक्रेट है, ऐसी कौन सी अजीब बात वो बताने वाले हैं। बट वो आगे जब बताते हैं, एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, पर मजबूरी है, बताना पड़ेगा। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि इन नक्षत्रों में जो बच्चा पैदा हुआ है उसे एक दिन मौत का सामना करना पड़ेगा, या मौत आएगी उसे लेने के लिए। तो अगेन सीक्रेट है नहीं। आयरॉनिकल आयरॉनिकल सिचुएशन क्या होती है बच्चों, कि जहां पे आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं पर होता कुछ और है। यू एक्सपेक्ट समथिंग एल्स। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ा दी, सीक्रेट सीक्रेट ऐसे करके कि पता नहीं कितना बड़ा सीक्रेट है। एज एफ जैसे कई बार किसी बच्चे को समझाने के लिए हम मुट्ठी में कुछ छुपा लेते हैं और कि उसमें कुछ है कुछ है कुछ है, और बाद में जब मुट्ठी खोलते हैं तो इट्स एम्प्टी, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो इसी तरीके से इनका सीक्रेट निकला। तो आयरॉनिकल सिचुएशन है जहां पे एक्सपेक्टेशन तो बढ़ गई, वाओ समथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन, बट एक्चुअली इट डज नॉट। So he says, and we are forced to speak out, as if forced to speak out something which is very extraordinary, something which is such a big secret, something which should not be told, क्योंकि ये तो सब जानते हैं। And as we move ahead, he says that at that very moment, a great miracle took place. And what was that miracle? An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jung Bahadur. I hope you can see the small, the infant, the baby. He's just 10 days old. And what does he say? Oh, wise prophets, all those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could just tell the manner of that death. अब एक बच्चे को भी मालूम है कि एक छोटा सा बच्चा, वैसे दिस इज वेरी अगेन वेरी आयरॉनिकल कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो ऐसी बात कह रहे हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है उस एक दिन उसकी डेथ, ही विल हैव टू फेस हिज डेथ। और एक 10 दिन का बच्चा इतने खास सवाल पूछ रहा है, इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ रहा है। कितनी आयरॉनिकल सिचुएशन है, जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खास बात बताएं वो नहीं बता रहे, और जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, सो इट बिकम्स एन एलिमेंट ऑफ शॉक एंड सरप्राइज कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। वो बहुत ही हैरान होके अपने नाक पे अपनी उंगली रखते हुए इस बच्चे को देखते हैं और क्या कहते हैं?
A baby barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it raises intelligent questions. Incredible. The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies. Therefore, death comes from the tiger. At this, the crown prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. And he said, "Let tigers beware." The crown prince Jung Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. अब हमारे जो क्राउन है प्रिंस जंग जंग बहादुर, वो बड़े हो रहे हैं और ऐसा कोई मिरेकल जो उनके बचपन में हुआ, जो एस्ट्रोलॉजर ने जिस तरीके से बताया उनके बारे में, और एक 10 दिन के बच्चे ने सवाल पूछे और टाइगर्स को चेतावनी दे दी, ऐसा कुछ इंसिडेंट उसके बाद नहीं हुआ। और जब प्रिंस बड़े हुए, the boy drank the milk of an English cow. He was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films. Exactly as the crown princes of all other Indian states did. कुछ ऑड आपको यहाँ पे भी लगेगा, अगेन एग्जैजरेशन। अब एग्जैजरेशन जैसे मैंने बताया एक स्टाइल है ऑथर का, आपके इंटरेस्ट, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप इंटरेस्ट आपका इसमें डेवलप हो कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, और हाईलाइट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर इशू को। और इस कॉन्टेक्स्ट में वो किस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं? इंग्लिश। और वो क्या कहते हैं कि उस समय पे जितने भी क्राउन प्रिंसेस थे वो सभी इंग्लिश के लिए, इंग्लिश द लैंग्वेज वाज सो पॉपुलर, इट वाज सच अ क्रेज अमंग्स देम, वो इतना दे यूज्ड टू फैंसी द लैंग्वेज सो मच, और प्लस दे हैड दिस पावर कि वो इस लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए जो भी तरीके के रिसोर्सेज उन्हें लगता था कि उनको हेल्प करेंगे वो उसको इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ तक कि वो दूध भी जो पिया करते थे वो एक इंग्लिश काउ का था, उन्हें जो संभाला करती थी वो एक इंग्लिश नैनी थी। नैनी इज आया या उनकी केयर टेकर जो उनका ध्यान रखा करती थी। उनको पढ़ाने आते थे इंग्लिश ट्यूटर, एंड ही यूज्ड टू वॉच जस्ट इंग्लिश मूवीज। सो अनदर सरकाजम जैसे मैंने आपको बताया था कि व्यंग, making fun of people by imitating in ways that expose their flaws. Exaggerated language में जब बात करते हैं तो उसको हम लोग सटायर या सरकाजम कहते हैं। और यहाँ पे किसके ऊपर हो रहा है सरकाजम? ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का कितना इम्पैक्ट था, इन्फ्लुएंस था ऑन ऑन दीज क्राउन प्रिंसेस या इनके और तरह इनके साथ के जो और क्राउन प्रिंसेस थे, किंगडम्स के जो और क्राउन प्रिंसेस थे या रॉयल फैमिलीज थी, उसमें जिस तरीके का इंग्लिश का इन्फ्लुएंस था उसको वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। बट व्हाट हैपेंड व्हेन ही केम ऑफ एज ऑफ 20, द स्टेट व्हिच हैड बीन इन द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स। अब जब वो 20 साल के हुए लगभग, तो असली में राज सत्ता या जो किंगडम है उनके हाथों में आया। But everyone in the kingdom remembered astrologers' prediction. अब जो किंगडम में जो लोग हैं, जो और गांव के या किंगडम के जो लोग हैं, वो किस बारे में बात कर रहे हैं? Astrologers' prediction. Many continued to discuss the matter. तो अक्सर जो बचपन में जो उन्होंने जो क्राउन प्रिंस के बचपन की जो कहानियां सुनी थी, they had heard the stories of crown prince, a 10-day-old crown prince, talking, asking intelligent questions, challenging astrologers, challenging tigers. They had heard these stories.
and they were talking about these stories. Slowly, it came to Maharaja's ears. कहाँ पहुंची ये सारी कहानियां? महाराजा के कानों तक. अभी तक शायद वो भूल गए थे, क्योंकि जब वो बड़े हो रहे थे इस इन बिटवीन ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो पर ये कहानियां जब उनके कानों में पहुंची तो क्या हुआ? उन्होंने ये मान लिया कि आप अगर अपने सेल्फ डिफेंस में, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस. सो व्हाट डिड ही डू? द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट. वो निकल पड़े शेर के शिकार के लिए. The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer. उन्होंने state astrologer को बुलवाया and showed him the dead beast. What do you say now? Your Majesty, you may kill 99 tigers, but you must be very careful with the 100th tiger. क्या कहा एस्ट्रोलॉजर ने, स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने, कि योर मैजेस्टी, आपने आज एक शेर मारा है, आप इस तरह से 99 और टाइगर्स को मार डालिए, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर. जो 100वां शेर है, आपको उससे बच के रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा. What if the 100th tiger were also killed? Oh, I will burn my books, cut my tuft and become an insurance agent. क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजर कि अगर ऐसा हुआ, मैं अपनी किताबें जला दूंगा. कौन सी किताबें? एस्ट्रोलॉजी की जो उनकी किताबें हैं. एंड कट माई टफ्ट. टफ्ट क्या होता है बेटा? ये जो एस्ट्रोलॉजर्स यूजुअली, जो पंडित्स यूजुअली स्मॉल ब्रेड, जो वो दे कीप अ स्मॉल ब्रेड, इट इज कॉल्ड टफ्ट, जो मैंने एनसर्कल करके आपको दिखाया है. सो ही सेज, I will cut my tuft off and become an insurance agent. The state banned tiger hunting by anyone except Maharaja. A proclamation was issued to this effect. By orders of the king, if anyone dare to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property will be confiscated. तो ये राजा का आदेश निकला कि अगर किसी ने शेर के ऊपर, शेरों के ऊपर, जो उनके राज्य में, किंगडम में जो फॉरेस्ट हैं, हैं, अगर किसी ने उन पे एक पत्थर भी फेंकने की कोशिश करी, all his wealth and property, उसकी जितनी जमीन जायदाद है, will be confiscated. उसको जब्त कर लिया जाएगा, उसको उससे छीन लिया जाएगा. तो ये प्रोक्लेमेशन निकलने के बाद क्या होना था? From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिपुरम. अब जैसे ही टाइगर्स को ये पता चला कि ये प्रोक्लेमेशन निकला है, उनके लिए तो सेलिब्रेशन टाइम हो गया. अब बच्चों, ये भी जो है, इट्स एन आयरॉनिकल सिचुएशन. इस टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम कैसे हो सकता है? क्योंकि उनकी तो मौत का फरमान जारी हुआ है, पत्थर फेंकने के लिए उन्हें किया है, क्योंकि टाइगर हंटिंग राजा के द्वारा ही की जाएगी. क्योंकि अब इनके टाइगर्स के मरने का टाइम शुरू हो गया है, बट द ऑथर सेज इट्स द सेलिब्रेशन टाइम. तो अगेन आयरॉनिकल सिचुएशन, क्योंकि अगर आप सोचें कि सेलिब्रेशन, ऑब्वियसली सेलिब्रेशन अब यहाँ पे इज अगेन अ पन फॉर द सिचुएशन. एंड आयरॉनिकल सिचुएशन ये इसलिए है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या बढ़ती है कि जब आप प्रोक्लेमेशन देखते हैं तो आपको ये लगता है कि अच्छा, एक पत्थर भी नहीं मारना. पर एक्चुअली में क्या है, राजा ने प्रोक्लेमेशन क्यों दी है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हंट ऑल दोज टाइगर्स. क्योंकि उसने फैसला कर लिया है कि अब 99 टाइगर्स
100 टाइगर्स वो मार के रहेंगे, जिससे कि उन पे कोई खतरा ना बना रहे। तो इसलिए कह जरूर रहे हैं ऑथर, इट्स सेलिब्रेशन टाइम फॉर टाइगर्स, बट इट इज वेरी आयरॉनिकल। तो क्या हुआ, लेट अस सी इसके बाद क्या होता है। अब राजा ने शेर मारने शुरू कर दिए और हंटिंग स्प्री उनकी शुरू हो गई। बट एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। थ्रोन उनकी राजगद्दी। कैसे? A high ranking British officer visited Pratibandhapuram. He was very fond of hunting tigers. अब एक ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है ये कहानी उस समय की है जिस समय पर इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर करी, क्योंकि उन्हें टाइगर हंटिंग का बहुत, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और उससे भी ज्यादा उन्हें किस चीज का शौक था? उन टाइगर्स के साथ फोटोग्राफी करने का, उन टाइगर्स के कैरकैस के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि उस टाइगर की डेड बॉडी के ऊपर पैर रख के फोटोग्राफी करवाने का और फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने का। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधापुरम। और जैसे कि उनका शौक था, उन्होंने प्रतिबंधापुरम में अपनी इच्छा जाहिर करी कि वो हंटिंग के लिए जाना चाहते हैं। बट महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। रिजॉल्व इज डिटर्मिनेशन। महाराजा ने तो पूरा पक्का फैसला कर रखा था कि टाइगर हंटिंग उनके अलावा कोई और नहीं करेगा। ही रिफ्यूज्ड परमिशन। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। यू मे गो ऑन अ बोर हंट। बोर इज पिग, वाइल्ड पिग, जंगली सुअर। उस जमाने में जंगली सुअर का भी काफी हंटिंग किया जाती थी। तो यू मे गो ऑन अ बोर हंट, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। पर अब यहाँ पे कुछ एग्जैजरेशन हो रही है अगेन। तो हम बार बार देख रहे हैं कि राइटर जो है चीजों को थोड़ा सा अतिशयोक्ति जिसे कहा जाता है, एग्जैजरेट करके बता रहे हैं, थोड़ा सा एक ह्यूमर एलिमेंट लाने के लिए, समझाने के लिए कि यस he knows he is exaggerating, but he wants to put in the element of sarcasm। sarcasm और satire इसके अंदर लाना चाह रहे हैं, ह्यूमर लाना चाह रहे हैं इसके अंदर। बार बार वो रिडिक्यूल कर रहे हैं राजा के एक्शंस को, और यहाँ पर वो ब्रिटिश ऑफिसर के एक्शन को भी रिडिक्यूल कर रहे हैं कि हंटिंग से ज्यादा उन्हें क्या शौक था? हंटिंग की फोटोग्राफी करवाना या उसकी फोटोग्राफ्स को संभाल के रखना, जिसमें वो डेड टाइगर के ऊपर पैर रख के खड़े हुए हैं। बट राजा ने परमिशन के लिए मना कर दिया और उन्होंने कहा आप चाहे पिग की हंटिंग कर लीजिए, यहाँ तक कि आप चाहे तो चूहे का शिकार कीजिए, मैं हर चीज में आपको जो है हेल्प करने को तैयार हूँ। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट। यहाँ तक कि मच्छर का शिकार भी हम करने के लिए तैयार हैं, बट टाइगर हंट, दैट्स impossible. The British officer's secretary sent a word to Maharaja through the Diwan that Durai himself did not have to kill the tiger. अब यहाँ पे दुराई क्या है? एक्चुअली तमिल लैंग्वेज में जो बड़ा ऑफिसर होता है या कोई लीडर होता है उसको दुराई कहा जाता है, और यहाँ पे दुराई हैज बीन यूज्ड फॉर दिस ब्रिटिश ऑफिसर। दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। अब उन्होंने ये भी कहा कि दुराई जो है, जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं, वो नहीं करेंगे हंटिंग, हंटिंग आप करो। वो सिर्फ क्या करना चाहते हैं? उसके साथ फोटोग्राफी करना चाहते हैं, उस कैरकैस के साथ। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। वो सिर्फ उसकी डेड बॉडी, जो टाइगर की जो डेड बॉडी है, कैरकैस इज द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, उसके साथ ही wants to have a photograph। But the Maharaja would not agree even to this proposal। पर महाराजा इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। If he relented now, अगर वो अभी मान गए इस एटीट्यूड के लिए, या if he yields to this request, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts?
उसे लगा कि अगर और ब्रिटिश ऑफिसर्स आएंगे तो क्या करेगा, वो हर एक को कैसे जवाब देगा। ये तो सिर्फ फोटोग्राफ के लिए कह रहे, पर हो सकता है वो एक्चुअल हंटिंग के लिए कहें। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब महाराजा को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो उनका, क्योंकि उस समय ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, दे वर वेरी पावरफुल। वो किसी को भी किसी का भी किंगडम छीन सकते थे, किसी को भी राजगद्दी से हटा सकते थे, इतनी उस समय पे उनके पास पावर थी। तो महाराजा को डर भी लगने लगा। तो इसका मतलब जो हमने बिगनिंग में पढ़ा था, वेरी करेजियस किंग, या हंटिंग के लिए जैसे हम जान रहे हैं कि इनडोमिटेबल करेज, इस सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है कि वो सब एग्जैजरेशन था, ऐसा कुछ सच में नहीं है। अब हुआ क्या? The Maharaja and the Diwan held deliberations. Deliberations क्या होता है? Discussion, careful consideration और discussion. दीवान कौन है? जो राजा के मंत्री हैं, जो उनके सलाहकार हैं। तो जो महाराजा और उनके जो दीवान हैं, उनकी डेलिब्रेशंस, उनके सलाह से उन्होंने काफी डिस्कशन किया ओवर दिस इशू। कौन सा इशू? कि क्या ब्रिटिश ऑफिसर को मौका दिया जाए फोटोग्राफ का, और क्योंकि उन्होंने मना कर दिया फोटोग्राफ के लिए भी, तो उन्हें लगा कि अब कैसे ब्रिटिश ऑफिसर गुस्सा हो गए हैं, उन्हें कैसे शांत किया जाए। As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers. Dispatch होता है, उन्होंने they sent a telegram. उसी समय एक टेलीग्राम भेजा गया to a famous British company of jewelers. ज्वेलर्स जो कि ज्वेलरी की आइटम्स बनाते हैं, जवाहरात, हीरे जवाहरात बनाते हैं इन कैलकटा। ये बहुत फेमस उस समय पे हुआ करते थे। कैलकटा के जो ज्वेलर्स थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स की खास ज्वेलरी को डिजाइन किया करते थे। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन। और क्या कहा गया कि हमें एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के सैंपल्स भेजे जाए। वो क्यों मांगे गए? सम 50 रिंग्स अराइव्ड, almost 50 diamond rings आई। The Maharaja sent the whole lot to British officers, good lady। और सारी की सारी 50 rings, diamond rings किसको भेज दी गई? British officers, good lady। Good lady means उनकी wife। The king and the minister expected the दुराई सानी। अब दुराई सानी, जैसे दुराई का मैंने बताया था कि तमिल में जो ब्रिटिश ऑफिसर या बड़े जो लीडर हैं, जो ऑफिसर है, उनको दुराई कहा जाता है। तो उनकी वाइफ को, द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर हियर इज कॉल्ड दुराई सानी। और उनको 50 रिंग्स भेज दी गई टू चूज 1 or 2 रिंग्स। उन्हें क्या लगा कि हम भेजेंगे, वो 1 या 2 रिंग्स उसमें से चूज कर लेंगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी की वापस कर देंगी। Within no time, all the Durai Sani sent her reply, thank you very much for your gifts। और बहुत ही जल्दी उनको रिप्लाई मिला। क्या रिप्लाई मिला? थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। क्या मतलब कि ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने सबकी सब रिंग्स रख ली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 या 2 रिंग्स वो रखेंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सबकी सब रिंग्स रख ली। इन 2 days a bill of 3 lakh of rupees came from the British jewelers। और 2 दिन के अंदर 3 लाख रुपए का बिल। आई टेल यू व्हाट स्टूडेंट्स, उस समय के 3 लाख आज के शायद 3 करोड़ के बराबर होंगे। और उनको जब बिल आया 3 लाख रुपए का फ्रॉम ब्रिटिश ज्वेलर्स, वो जो कैलकटा के ज्वेलर्स थे, बट स्टिल, फिर भी the Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, उन्होंने 3 लाख रुपए जरूर तो खो दिए, he managed to retain his kingdom। उन्होंने एटलीस्ट अपने किंगडम को बचा लिया। अगेन सच एन आयरॉनिकल सिचुएशन कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1-2 रिंग्स रखेंगी, पर दुराई सानी ने सब रिंग्स रख ली। और अपने किंगडम को बचाने के लिए उन्होंने इतना ह्यूज अमाउंट। और ये इससे ये भी पता चलता है कि राजा महाराजा या जो पावरफुल लोग हैं
वो कैसे, क्योंकि ये पैसा किसका है, ये जनता का पैसा है, तो कैसे पावरफुल लोग जो पीपल्स मनी है, जो पब्लिक मनी है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। यहाँ पे राजा ने ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को खुश करने के लिए, इन अदर सेंस ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करने के लिए उन्होंने ये रिंग्स और 3 लाख रुपए खर्च किए, और ये सारा पैसा उस गरीब जनता का है जो शायद कितनी परेशानी में रह रही होगी। And next, what continued? The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. और इस दौरान महाराजा की जो टाइगर हंटिंग है वो बहुत बढ़िया से चल रही है। Within 10 years, 10 साल के अंदर अंदर he was able to kill 70 tigers. तो लगभग 20 साल के थे जब इन्हें पता चला था और इन्होंने पहली टाइगर हंटिंग की थी, और इसके बाद लगभग 10 साल के अंदर, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग उनकी उम्र अभी 30 साल की उम्र रही है। Within 10 years he was able to kill 70 tigers. 70 शेर इन्होंने मार डाले। The tiger population became extinct in the forests of Pratibandhapuram. अब हुआ क्या? अनफोर्सीन हर्डल आ गया। अब इतना तो उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। अगेन आयरॉनिकल सिचुएशन कि कैसे नहीं सोचा था कि आप टाइगर्स को इतना तेजी से मारना शुरू करेंगे और टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है कैसे इतनी जल्दी बढ़ती जाएगी। तो एक आयरॉनिकल सिचुएशन है, एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है, आप एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं बट हो कुछ और रहा है। तो जो फॉरेस्ट हैं, प्रतिबंधापुरम के जो फॉरेस्ट हैं, वहां पर टाइगर की जो पॉपुलेशन है it became extinct. He could kill no more as he had wiped out the entire population of his region. So what did he do? One day the Maharaja sent for the Diwan. महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान मैंने बताया था उनके काउंसलर, महाराजा के मंत्री, हिज मिनिस्टर, हिज एडवाइजर। ओके, और जब महाराजा ने दीवान को बुलाया तो क्या कहा? Diwan, aren't you aware that 30 tigers still remain to be shot by this gun of mine? Your Majesty, I am not a tiger. Which idiot would call you a tiger? No, and I am not a gun. You are neither, Diwan. I called you here for a different purpose. I have decided to marry. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you... Don't talk nonsense. Why should I marry you? What I want is a tiger. A tiger king is enough for the state. We don't need a tiger queen as well. I'm not thinking of marrying a tiger, but a girl from the royal family of a state with a large tiger population. So, again, how selfish is the Raja? Raja wants to marry even for his marriage. What is the criteria of getting married? Even for marriage, he is thinking about tigers. So he wants to marry a girl with a state with large population of tigers. So Maharaja got married. He married a girl with a large population of tigers in her kingdom. So the Maharaja's anxiety reached a fever pitch when just one tiger to achieve his tally of 100. Now, when he married a girl, he started killing tigers again in the kingdom of that girl, in the kingdom of that girl's father. So
he reached a tally of 99, but his anxiety reached a fever pitch. Anxiety is nervousness, unease about something, because he has reached a tally of 99, but the last one is still remaining. So he had this one thought during the day and the same dream at night. दिन रात उनको एक ही ख्याल रहता था. पिक्चर में आप देख सकते हैं, उनको बस लास्ट टाइगर का ख्याल आ रहा है. दिन भर, रात भर उनके सपने में भी सिर्फ एक ही चीज आती है कि मुझे अब 100वां टाइगर मारना है. By this time, the tiger farms had run dry, even in his father-in-law's kingdom. अब उनके फादर इन लॉ के किंगडम में भी ये टाइगर पॉपुलेशन खत्म होनी शुरू हो गई, और अब आखिरी टाइगर बचा है, क्या करे. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर. अब कहाँ से टाइगर लाएंगे इतनी तेजी से. एक हंटिंग स्प्री चल रही है, एक पागलपन चल रहा है, टाइगर्स की मारने की धुन लगी हुई है. जब इतनी तेजी से वो टाइगर्स को मारना शुरू हो जाएंगे तो कहाँ से टाइगर्स बचेंगे. Yet only one more was needed. बस अब एक ही तो और चाहिए था. If he could kill just one single beast, that one single beast, वो अकेला आखिरी शेर, the Maharaja would have no fears left. महाराजा को किसी तरीके का डर नहीं रहेगा. He could give up tiger hunting altogether. वो टाइगर हंटिंग पूरी तरह से छोड़ देंगे, उन्होंने ये सोचा. One day when his rage was at its height, जो उनका रेज, जो उनके अंदर कौतूहल मचा हुआ है, जो उनके अंदर टाइगर्स को मारने का क्रेज है, वो हाइट पे था. अब उनसे मतलब उनका जो एंजाइटी थी वो इस लेवल पे पहुंच गई कि इतने गुस्से में आ गए. तो महाराजा कॉल्ड द दीवान. उन्होंने अपने दीवान को, अपने एडवाइजर को, मंत्री को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम, उनको ऑर्डर किया टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ. और उन्होंने कहा जो लैंड टैक्स है, टैक्स आप सब कुछ जानते हैं, हम सब टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं. तो उस जमाने में भी टैक्स हुआ करते थे. जो जनता होती थी वो राजा को टैक्स देती थी, क्योंकि राजा उनके केयर टेकर हैं, एक तरह से उनके जो किंग हैं वो उनका पूरी तरह से ख्याल रखते हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं. तो इसलिए राजा को टैक्स दिया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. सारे राज्य में जितने भी सारे कार्य हो रहे हैं, ये कामकाज हो रहे हैं, उनके लिए टैक्स दिया जाता था. अब राजा ने क्या कहा, टैक्स को डबल कर दिया जाए. अब यहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि राजा कितने सेल्फिश हैं. उनको जनता की कोई परवाह नहीं है. उन्होंने कोई ख्याल नहीं है कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है, कैसे लोग जी रहे हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं. उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घुसी हुई है कि मुझे 100 शेर मारने हैं. और सबसे हैरानी वाली बात कि उनके जो दीवान हैं, जो उनके जो मिनिस्टर हैं, अभी तक वो भी उनको कोई गाइडेंस नहीं दे रहे, उनको अलार्म नहीं कर रहे. और अगर वो करते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, तो क्या होता है. ये फीवर पिच जैसे मैंने अभी बताया था, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट. और जब दीवान को वो बुला के कहते हैं राजा कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो लैंड टैक्स है, उसको डबल कर दिया जाए. वो किस लिए किया जाए, ताकि लोग उन्हें शेर ढूंढ के ला कर दे. जैसे ही उन्हें पता चले कि कहीं पर शेर है, वो इमीडिएटली राजा को इन्फॉर्म करे, ताकि वो आखिरी शेर को मार सकें. अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉपर्टी टैक्स को उन्होंने कहा है कि इसको डबल कर दिया जाए. अब दीवान को लगने लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो गया है, राजा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट बना रहे हैं सिचुएशन को. तो वो राजा को थोड़ा सा वॉर्न करते हैं. द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस. वो क्या कहते हैं कि राजा, अगर आपने ऐसा किया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उस समय पे ब्रिटिश रूल था और इंडियन नेशनल कांग्रेस धीरे धीरे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट अपने आप को मजबूत कर रही थी, सारे किंगडम्स को अपने साथ जोड़ रही थी. तो उन्हें लगा कि हमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होना पड़ेगा और हमारा किंगडम वगैरह सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा. In that case, you may resign from your post, said the king. अब किंग ने क्या धमकी दी, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा होगा
तो तुम अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देना। मतलब राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि वो जो 100th टाइगर है, जो 100वां शेर है, वो उसको मारना चाहते हैं। द दीवान वेंट होम convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, उन्हें लगा अगर महाराज को, राजा को जल्दी से शेर नहीं मिला, the results could be catastrophic. डिसकंटेंटेड, मैंने जैसे बताया था, डिससेटिस्फैक्शन, जब दीवान ने कहा था कि लोगों के अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग हो जाएगी, लोगों के अंदर रिजेंटमेंट की फीलिंग हो जाएगी, रिवोल्ट कर सकते हैं, तो राजा इस बात को नहीं समझे, पर जो दीवान है वो समझ रहे हैं कि इसकी रिजल्ट्स जो हैं दे कैन बी कैटास्ट्रोफिक, दे कैन ब्रिंग अ ग्रेट डैमेज और सफरिंग। मतलब उनके राजपाट के लिए एक ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. पर जब वो घर पहुंचे तो उनकी जान में जान आई जब उन्हें याद आया कि उनके घर में जो उनका एक शेर, पीपल्स पार्क, उस जमाने में एक्चुअली जो जू बना, कई बार छोटे छोटे जू बना दिया जाते थे, जहाँ पे पार्क है, जहाँ पे बच्चे जो हैं जू भी देख रहे हैं और वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी एरिया है और छोटा सा एक जू भी बना दिया गया है, और वहीं पर और जगहों पे स्विंग्स भी हैं। तो इस तरीके का एक पीपल्स पार्क था मद्रास में, जहाँ से इनको ये एक टाइगर मिला था जो कि बहुत ही बूढ़ा था, ही वॉज वेरी ओल्ड। तो दीवान को लगता था कि पता नहीं ये कब बचेगा कब नहीं बचेगा, उनके घर में उनको जो है ये रख लिया था। और अब जब उस टाइगर को उन्होंने देखा कि ठीक ठाक है, तो उन्हें उनके जान में जान आई, उन्हें लगा कि अब कोई और चारा नहीं बचा, देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। उन्होंने क्या किया? एट मिडनाइट, आधी रात को, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car. उन्होंने इस टाइगर, क्योंकि वो इतना बूढ़ा है कि वो प्रॉपरली चल भी नहीं पा रहा और वो चलना भी नहीं चाहता, दोनों ने, दीवान और दीवान की वाइफ जो है, वो दोनों भी काफी बड़ी उम्र के हैं, पर उन्होंने किसी तरीके से उसे ड्रैग करके, उसे खींच के एंड shoved it into the seat, उसको कार की सीट में घुसाया, उसको जैसे जबरदस्ती पुश किया उसको अंदर घुसाने के लिए। वो किस लिए? The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. अब महाराजा अपना तंबू गाड़ के, अपना सारा सामान और पूरे अपने लोगों को लेकर जंगल में ही उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया है कि मैं जब तक टाइगर नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। तो दीवान ने अब इस टाइगर को जो उनके घर में था उसको लिया और अपनी गाड़ी में डाला, ड्रैग किया, उसको गाड़ी में शव किया, और उसके बाद when they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह। लॉन्च्ड का मतलब स्टार्ट, क्या शुरू कर दिया उसने? सत्याग्रह। अब सत्याग्रह ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया वो कौन सा समय था? ब्रिटिशर्स का, जिस समय पर गांधी जी अपनी बात को मनवाने के लिए सत्याग्रह कर देते थे, कि चाहे वो फास्ट पे बैठ जाते थे या नमक सत्याग्रह उन्होंने जैसे किया कि हम यहीं पर बैठेंगे, इस कानून में परिवर्तन लाया जाए, चेंज लाया जाए, नहीं तो हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो एक तरीके से पॉलिटिकल रेजिस्टेंस के लिए महात्मा गांधी जी का जो तरीका था उसको उस समय पर सत्याग्रह कहा जाता था। तो अब ऐसे लग रहा है कि जैसे शेर ने भी सत्याग्रह कर दिया है। तो अगेन एग्जैजरेशन वाली सिचुएशन है कि एक शेर जो है वो सत्याग्रह करके बैठा है, और किस चीज के लिए? रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, जैसे वो कार से बाहर नहीं निकलना चाहता था उसने, बिल्कुल। द दीवान वॉज थॉरोली एग्जॉस्टेड, पर दीवान तो ऑलरेडी बहुत थक चुके थे उस शेर को गाड़ी में डाल के उसको वहां तक लाने में, इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार। अब इतना थक चुके थे कि उसको गाड़ी से कैसे खींचे, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, उसको ग्राउंड तक वापस नीचे उतारने के लिए उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा दी।
On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence. उसी के अगले दिन जो टाइगर है वो महाराजा की प्रेजेंस में वॉन्डर करने लगा, मतलब घूमने फिरने लगा, क्योंकि महाराजा वहीं थे, टाइगर भी वहीं था। तो टाइगर जो है जब वहां पर स्ट्रॉल कर रहा था, थोड़ा थोड़ा घूम फिर रहा था, एंड stood as if in humble supplication, और वहां पर वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि वो हाथ जोड़ के खड़ा हो। बेचारा बूढ़ा टाइगर था, एक पिक मैंने जो इसमें लगाई है आप उसको देख सकते हैं कि बेचारा जैसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि हाँ आ जाओ, मार लो, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, क्या मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरे आका, मेरे महाराज, मुझसे क्या चाहते हैं। It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. और महाराजा के लिए तो इससे खुशी की और बात हो ही नहीं सकती थी। उन्होंने उस शेर के ऊपर अपना निशाना ताना। The tiger fell in a crumpled heap. Crumpled, collapsed. वो जैसे कोई एक कपड़ा हो या कोई ढीला सा कोई चीज हो, वो ऐसे क्रम्पल करके जमीन पर गिर गया। कौन गिर गया? शेर। I have killed the 100th tiger. My vow has been fulfilled. So the tiger king was so happy. वो इतने खुश हुए कि मैंने अपना जो कसम ली थी, जो वाव लिया था, मैंने उसको पूरा कर दिखाया। The Maharaja was overcome with elation. वाव, जो प्रॉमिस जो उन्होंने एक लिया था, जो एक वचन लिया था, और he was elated, खुशी के मारे, with great happiness, exhilaration, ordering the tiger to be brought to the capital in great procession. उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि उनके साथ में जो उनके सैनिक थे कि इस टाइगर को एक बड़े जलसे में शोरगुल के साथ, पूरे बाजे गाजे के साथ, उस जमाने में जब ऐसे टाइगर हंटिंग होती थी तो उस टाइगर को एक बड़े से रॉड के साथ, बड़ी सी मोटी सी स्टिक के साथ उसको बांध के ले जाया जाता था और पूरा एक गांव में उसको पूरे ये किंगडम में घुमाया जाता था ताकि लोग उसको देखें और तालियां बजाएं और वाह वाह करें कि वाह कितने बड़े बीस्ट को जो है मार गिराया है। तो राजा ने कहा कि एक प्रोसेशन निकाला जाए और उसके अंदर जैसे प्रोसेशन का मीनिंग है अ नंबर ऑफ पीपल और व्हीकल्स मूविंग फॉरवर्ड इन एन ऑर्डरली फैशन, स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ अ सेरेमनी। तो इसको एक सेरेमनी की तरह वो चाहते थे कि इस मेरे आखिरी जो शेर की जो मैंने हंटिंग करी है उसको एक सेरेमनी की तरह लिया जाए और लोगों के बीच में ले जाया जाए। द महाराजा hastened away in his car, और महाराजा जल्दी से फटाफट, क्योंकि अब उनका काम खत्म हुआ, अपनी कार में बैठे और वहां से चले गए। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. और जैसे ही महाराजा वहां से गए तो हंटर्स जब टाइगर को देखने गए, उसको पास से जब देखा, the tiger looked back at them. टाइगर तो उनको देख रहा था। The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. टाइगर तो उनको, इसका मतलब टाइगर मरा नहीं था, बल्कि बड़े कंफ्यूजन में, bewilderment में, perplexed. He was so bewildered. He was so confused. और वो ना आंख खोल के उनको देखने लगा। The men realized that the tiger was not dead. अब वो समझ गए कि राजा ने निशाना तो जरूर साधा था, निशाना तो जरूर लगाया था, बट इसका मतलब वो टाइगर जो है वो मरा नहीं, वो निशाना चूक गया था। तो क्या पता चल रहा है कि राजा जो समझ रहे हैं, तो दिस इज अ ड्रामेटिक आयरनी। आयरनी जैसे हमने बात करी थी कि आयरनी क्या होता है कि व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग बट ऑपोजिट हैपेंस, समथिंग अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ अ सिचुएशन। पर यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इसलिए है, इसलिए इसको हम ड्रामेटिक आयरनी बोल रहे हैं कि ड्रामा की फॉर्म में, क्योंकि राजा जो सोच रहे हैं कि मैंने टाइगर को मार दिया है, मैंने अपना आखिरी शेर का शिकार कर लिया है,
ही डजंट नो, राजा को नहीं मालूम कि उन्होंने शेर को नहीं मारा है। तो ड्रामेटिक आयरनी, जैसे मैंने बोला कि इट इज अ सिचुएशन which is understood by the audience। अब हम सब जान रहे हैं कि राजा ने शेर को नहीं मार पाए, उनका निशाना चूक गया, पर हमारे जो हीरो हैं उनको नहीं मालूम। तो दिस इज अ ड्रामेटिक आयरनी। सो एक जैसे आयरनी है, आयरनी इज समथिंग strange when something, a situation when something strange happens, but dramatic irony होती है जो ऐसे ड्रामा में या शॉर्ट स्टोरी में इस्तेमाल होती है, जहां पर ऑथर जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे जो कैरेक्टर है उसको नहीं मालूम, पर ऑडियंस को सब मालूम है। और हम जानते हैं कि असली में ऐसा हुआ नहीं, पर राजा बड़े खुश हैं कि उन्होंने शेर को मार दिया। सो द हंटर्स, द मेन रियलाइज दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट। इसका मतलब जो गोली थी वो मिस हो गई। whizzing past, it had fainted. Who had fainted? The tiger had fainted from the shock of the bullet whizzing past। जो बुलेट थी वो इतनी तेजी से, whizzing past मतलब बहुत तेजी से उसके पास से, बजिंग साउंड के साथ, विस्लिंग साउंड के साथ उसके पास से निकल गई, बट एक्चुअली में शेर को लगी नहीं। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब इनके लिए तो बेचारों के लिए बड़ी दुविधा हो गई कि क्या करें। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उसने अपना टारगेट मिस कर दिया, नहीं तो क्या होगा, उनके लिए फिर मुसीबत आ जाएगी, फिर से महाराजा आएंगे और फिर कई दिनों के लिए शायद ऐसा चलता रहे। If he did, they could lose their jobs। कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger। तो उनमें से हंटर्स में से एक ने थोड़ा पीछे जाकर उसके ऊपर निशाना बनाया और टाइगर को, शेर को मार डाला। The time he killed it without missing his mark। So this time, अब की बार निशाना नहीं चूका और शेर का सही शिकार हो गया और शेर को मार डाला गया। Now what happened? अब राजा तो खुश हैं कि he has killed his 100 tiger, और उन्हें ये भी लगा कि अब इसका प्रोसेशन भी निकाला जाना चाहिए। He commanded that it was commanded by the king that the dead tiger was taken in procession through the town and buried। A tomb was erected over it। अब इस आखिरी शेर को ना केवल प्रोसेशन निकाला गया, पूरी सेरेमनी के साथ उसे ले जाया गया, बकायदा इस शेर को जब दफनाया गया, एक टूम, उसके ऊपर एक चबूतरा एक बना दिया गया, एक टूम बना दिया गया, जिसके ऊपर लिखा गया कि ये वो आखिरी शेर है जिसको राजा ने मारा है। A few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated। अब महाराजा जो अभी तक तो बिजी थे अपने शेरों को मारने के लिए, अपने वाव को पूरा करने के लिए, अपने वचन को पूरा करने के लिए, जिनका किंगडम और अपनी फैमिली की तरफ वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, उनका एक बेटा है जो कि 3 साल का है और उसका 3rd बर्थडे आने वाला है। अब राजा को लगा कि मुझे अब थोड़ा अपने फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहिए, और कुछ दिन बाद उनके बेटे का 3रा जन्मदिन था। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting। He had no time to spare for the crown prince। अब उनका जो बेटा है वो obviously वो crown prince है। But now the king turned his attention to the child। He wished to give him some special gift on his birthday। उन्हें लगा कि हम जो है इस बर्थडे पे उनके अपने क्राउन प्रिंस को, अपने बेटे को स्पेशल गिफ्ट देना चाह रहे थे। He went to the shopping center। अब ये जो पिक आप सबके सामने है, ये एक शॉपिंग सेंटर की है। उस जमाने में शॉपिंग सेंटर बाजार वगैरह जो हुआ करते थे इन प्रतिबंधापुरम, एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और हर दुकान पे उन्होंने देखा, बट ही couldn't find anything suitable, और उन्हें कुछ भी सूटेबल नजर नहीं आया। Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift। अब ये देखिए कि राजा ने 100 टाइगर तो अपनी तरफ से, उनको लगता है उन्होंने 100 टाइगर मार लिए, बट
अभी भी टाइगर का भूत उनके दिमाग से नहीं उतरा कि यहाँ तक कि अपने बेटे को गिफ्ट करने के लिए जब वो एक शॉप पे पहुंचे तो उन्होंने शॉप से क्या चीज सिलेक्ट की? अ वुडन टाइगर, एक लकड़ी का शेर। शुरू में आपने, मनीष सर ने आपसे पूछे थे ना ब्रेन टीजर्स, तो उसमें हमने कागज का शेर पढ़ा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं लकड़ी का शेर, वुडन टाइगर। और राजा जब उस शॉपकीपर से पूछते हैं उसकी कॉस्ट, द शॉपकीपर थिंक्स द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। उसकी कॉस्ट क्या है? सिर्फ 2.5, 2 आने और अ क्वार्टर, ठीक है, जैसे जिसको 25 पैसे कहा जाता था। तो 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, 1/4 जो होता है एक आने का। बट इफ आई कोट, या 2.25 आना आप कह सकते हैं, बट इफ आई कोट सच अ लो प्राइस, अगर मैंने राजा को इसकी इतनी कम प्राइस बताई, आई वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी। और रूल्स ऑफ इमरजेंसी क्या होते हैं कि राजा अगर रूल बना दे, इमरजेंसी का रूल बना दे, तो इसका मतलब होता है कि सबकी सब पावर्स खत्म है। राजा जिसको चाहे जो सजा, उसके अपना मनमानी कर सकता है, जो चाहे जिसको चाहे सजा दे सकता है। तो लोग बहुत डर के रहते हैं इमरजेंसी से। तो उन्होंने, उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रूल्स ऑफ इमरजेंसी लग जाए और उसको इसके लिए पनिश कर दिया जाए। तो उसने क्या कहा? योर मैजेस्टी, this is an extremely rare example of craftsmanship. ये एक बड़ा खास नमूना है क्राफ्ट्समैनशिप का, बहुत खास तौर पे बनाया गया है ये वुडन टाइगर। और उसकी खासियत को बताते बताते क्या कहा टॉय शॉप के जो ओनर हैं, या जो शॉप ओनर हैं, जो इसको बेच रहे हैं, जो शॉपकीपर हैं, अ बार्गेन एट 300 रुपीज। जैसे कि जो बहुत राजा को बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे देना चाह रहे हैं। तो अब बड़े प्यार से उन्होंने कहा बार्गेन एट 300 रुपीज। बट Very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday. सो राजा ने कोई 300 या 2.25 आने कुछ भी नहीं देना था। वो बेचारा वैसे ही परेशान होता रहा। राजा ने क्या कहा? लेट दिस बी योर ऑफरिंग, ठीक है, ये तुम्हारी तरफ से क्राउन प्रिंस को गिफ्ट हो गया, तुम्हारी ऑफरिंग हो गई क्राउन प्रिंस के लिए। एंड नेचुरली जब राजा क्राउन प्रिंस के लिए वो टॉय लेकर गए हैं, वो वुडन टाइगर लेकर गए हैं, तो वो अपने बेटे के साथ, 3 साल का जो उनका बेटा है उसके साथ वो खेल रहे हैं, उसको उस वुडन टाइगर के साथ खिला रहे हैं। On that day, father and son played with that tiny wooden tiger. It had been carved by an unskilled carpenter. Its surface was rough. Tiny slivers of wood stood up like quills all over it. अब वो जो शेर था वो तो 2.5 आने का था, बहुत रफ बना हुआ था। वो तो राजा को खुश करने के लिए शॉपकीपर ने कहा था, टॉय शॉप ओनर ने कहा था कि राजा ये तो बड़े स्किल्ड कारपेंटर ने बनाया है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं था, वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, एक नौसिखिए ने बनाया था। नौसिखिया जिसने अभी कोई खास उसके अंदर स्किल नहीं है, या अभी बहुत ट्रेनिंग उसने नहीं ली है। तो हुआ क्या? इट्स सरफेस वाज रफ विद टाइनी स्लिवर्स। स्लिवर्स जैसे उसके अंदर लकड़ी की फांस, जो स्मॉल थिन नैरो पीस ऑफ समथिंग, जो लकड़ी में यूजुअली अगर बहुत अच्छे से फाइन तरीके से उसको नहीं घिसा जाता तो बारीक बारीक फांस के जो टुकड़े होते हैं वो निकल आते हैं। और ऐसे ही एक स्लिवर, सिल्वर नहीं है बेटा, याद रखिएगा, दिस इज नॉट सिल्वर, SIL नहीं है, ये SLIVERS है। स्लिवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स। क्विल्स क्या? जैसे कांटे उभरे हो, उसके ऊपर चोंचदार कांटे उभरे हो, शार्प स्पाइन्स की तरह उसके ऊपर ये निकले हुए थे। ऑल ओवर इट वन ऑफ दो स्लिवर्स पियर्स्ड द महाराजा's राइट हैंड। और खेलते खेलते उसमें से एक स्लिवर जो है, लकड़ी का एक टुकड़ा या फांस या पतली सी छिलतरन जिसे कहते हैं, वो राजा के राइट हैंड में घुस गई। He pulled it out with his left hand and continued to play
with the prince. और उसको उन्होंने निकाल दिया और अपने बेटे के साथ खेलने लगे जैसे खेल रहे थे. The next day infection flared in Maharaja's right hand. बट अगले दिन महाराजा के हाथ में इन्फेक्शन बढ़ गया. It developed into a suppurating sore. Suppurating sore जहाँ पे पस पड़नी शुरू हो जाती है, formation of pus, which spread all over the arm. अब वो इतना ज्यादा खराब हो गया, इतनी बिगड़ गई वो उनकी सिचुएशन कि वो जो पस थी वो पूरे हाथ में फैल गई. अब नेचुरली जब ऐसा हुआ तो उनके इलाज के लिए बड़े बड़े सर्जन्स को बुलाया गया. 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. और उन्होंने खूब जब कंसल्टेशन करी, उन्होंने विचार विमर्श किया और उन्होंने ऑपरेशन किया. और जब ऑपरेशन को परफॉर्म किया, it came out, they came out of the theater and announced the operation was successful. The Maharaja is dead. उन्होंने क्या कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ. द महाराजा इज डेड. अगेन व्हाट एन आयरनी. कैसी बात कह रहे हैं. अगर कोई कहता है ऑपरेशन इज सक्सेसफुल तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब महाराजा अब ठीक है. पर उन्होंने क्या कहा, द महाराजा इज डेड. आपको याद है क्लास 11 में आपने जो विक्रम सेठ की पोएम की थी द मेलन किंग, उसमें भी ऐसा ही होता है ना, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड. द किंग को वो फंदा जो उन्होंने बनाया होता है कल्प्रिट के लिए, और वो फंदा जो है राजा के गले में फिट आ जाता है और राजा को ही वो सूली चढ़ा देते हैं. तो क्या कहते हैं, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड. तो इसी तरह से यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड. ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया पर महाराजा नहीं बचे. In this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the Tiger King. और इस तरीके से 100वें टाइगर ने, ऑल्दो वो 100वां टाइगर असली टाइगर नहीं था, तो इसका मतलब एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन सही में तो प्रूव नहीं हुई. एस्ट्रोलॉजर ने तो नहीं कहा था कि टाइगर जो है एक वुडन टाइगर होगा जिससे आपकी मौत आएगी, क्योंकि वो तो असली टाइगर की बात कर रहे थे. तो पर 100वें टाइगर ने अपना रिवेंज जो है वो पूरा कर लिया. तो अब दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. स्टोरी तो हमारी यहाँ खत्म होती है, बट वो जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आपको मिला इस स्टोरी में वो क्या है, दैट द टाइगर किंग, दिस स्टोरी बाय काल्की इज अ सटायर. जैसे मैं शुरू से बता रही आ रही हूँ कि सटायर है, व्यंग. वो बार बार हंस रहे हैं, राजा क्या कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, जो दीवान है वो कैसे कर रहे हैं. तो उन सब चीजों पे वो हंस रहे हैं, उसके नाम के ऊपर, एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर. वो बात बात पे ह्यूमरस सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ऑफ दोज इन पावर. जो लोग पावर में हैं वो कैसे करते हैं. द थीम ऑफ द स्टोरी सजेस्ट दैट डेथ इज इनएविटेबल. ऑब्वियसली डेथ इनएविटेबल है, मौत आनी है. नो वन कैन एस्केप डेथ. राजा भी उससे बच नहीं सकते. उन्होंने बहुत कोशिश भी की, 100 टाइगर्स मारने की कोशिश की, पर वो अपनी मौत से नहीं बच सके, क्योंकि वो उनको ये लगता था कि मैं अपनी मौत को हरा दूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ. द ऑथर एम्प्लॉयज आयरनी टू ग्रेट इफेक्ट. अब आयरनी हमने जगह जगह पे आयरनी देखी, जहां हम कुछ सोच रहे थे हुआ कुछ और. लास्ट में ही आपने देखा ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द किंग इज डेड. द ऑथर सजेस्ट दैट मेन इन पावर आर गलेबल एंड रूथलेस टुवर्ड्स पुअर एनिमल्स. अब इससे ये भी समझ में आता है कि जो पावरफुल लोग हैं वो बहुत गलेबल इन द सेंस कि बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं, और एस्ट्रोलॉजर की बातों में आकर उन्होंने ये अपना दिमाग नहीं लगाया, सोचा नहीं कि जरूरी थोड़ा ना है. और एक टाइगर की बात करें तो जरूरी थोड़ा एस्ट्रोलॉजर जो कहेंगे वो सच ही होगा. और आज भी ऐसा होता है कि बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर्स और उनकी बातों में आके बहुत से कुछ करते हैं. कई जगहों पे तो वो तंत्र मंत्र विद्या और इस तरह के लोगों की बातों में लोग आ जाते हैं. The wanton manner in which the tiger king goes on a tiger killing spree to fulfill his reckless whims and fancies. ये साफ जाहिर है जिस तरीके से टाइगर किंग ने
अपनी विम्स एंड फैंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया. His indiscriminate actions lead to exploitation of his subjects. और इसके लिए उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी. उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो जनता है, उसको भी उन्होंने एक्सप्लॉइट किया कि कभी कह रहे हैं कि इसके ऊपर पत्थर भी नहीं मारना, नहीं तो उसको सजा दे दी जाएगी. कभी उनका लैंड टैक्स बढ़ा देते हैं, उनका प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा देते हैं. उनको भी वो इस तरीके से अपने काम के लिए बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. Besides extinction of tigers in the state and incurred the serious consequences, the author drives home the message through the irony that rulers' prime concern should be the welfare of its citizens and state. अब वो समझाना तो वो यही चाह रहे हैं ऑथर कि रूलर का प्राइम कंसर्न तो उसकी जनता है, उसकी स्टेट है, उसका किंगडम है. बट यहाँ पर आयरनी के थ्रू, मतलब उन्होंने सीधी सीधी बात को ना कहकर उस बात को सटायर के थ्रू, सरकाज़म के थ्रू, ह्यूमर के थ्रू उन्होंने इस बात को समझाया और आयरनी प्रेजेंट करी. आयरनी इज द आयरॉनिकल सिचुएशन प्रेजेंट करी. ठीक है, जो सटायर और सरकाज़म होता है वो एक्सप्रेशन में होता है, वो जो बातें हैं उसमें वो सटायर और सरकाज़म नजर आ रहा है, पर जो आयरनी होती है वो एक सिचुएशन में होती है. तो आयरॉनिकल सिचुएशन क्या निकली कि राजा को क्या होना चाहिए था वो क्या निकले. लास्ट में एस्ट्रोलॉजर्स को क्या बताना चाहिए था वो उन्होंने क्या बताया. बिल्कुल आयरॉनिकल सिचुएशंस आई. उसी तरीके से जो आपके सर्जन्स हैं, सर्जन्स को क्या कहना चाहिए था, या सर्जन्स ने जो सक्सेसफुल बताया उसको और बाद में कह रहे हैं द किंग इज डेड, पर हुआ बिल्कुल डिफरेंट. तो आयरॉनिकल सिचुएशन जगह जगह पे उन्होंने इसको क्रिएट किया. और now students, it's question time. I hope you got the message of the story. Now choose the words, 3 words that reflect the characters or qualities of the king. You have to choose the 3 words that correctly describe the qualities of the king. Quickly type in the chat box from the given options. The first one, quick, hurry up. Yes. The first word is crazy, another is ruthless, and the third one is stubborn. Good. So you have come to know about the Tiger King and the 3 important traits shown by him. Okay, quickly, the literary devices which were used in this chapter: humor, ridicule, sarcasm, satire, irony and dramatic irony. ये सभी हमने देखा कि किस तरीके से ऑथर ने इन लिटरेरी डिवाइसेस को यूज किया. He used humor, ridicule, sarcasm at many points. He exaggerated things. He ridiculed the name. He ridiculed the way the entry of the tiger is shown. His sarcastic remarks were given on his conduct. So everything is interrelated, and through an irony, he is describing. Quickly, we can see these vocabulary. Manish, are you taking this? Yes. Students, try to guess the meanings of the words which are covered by the green strips. Some are already shown to you, but some are hidden. So what's the meaning of Durai? Type in the chat box quickly. I'm waiting. Yes, quick. Yes, good. So Durai means, it's a Tamil word for chief or leader, a high-ranking official. Wonderful students, good response. Keep them coming. Bafflement and slivers, you can see now on your screen. Bafflement is confusion and slivers means thin pieces of wood. Let's move on to the next one.
Yes, again, we'll discuss one or two from them. The meaning of catastrophic. You have to type in the meaning of catastrophic in the chat box. Quick. Then extremely disastrous is the answer. And now try to guess the meaning of supplication. Also, you can type in the response, correct answer for elation. Quick. I wish to see lots of activity in the screen. Yes, it's coming up now. Good. Yes, supplication is an act of appeal for something. Good. And what about elation? Like we are feeling elated. We are feeling overjoyed with your responses that you are loving the story, dear students. So, in a short while, the quiz is coming up. Before that, we have the last one. Yes, the English wizards. So, are you ready? Type in with yes and see the classroom rules. Try to use English, participate in all activities, and try to answer as many responses as you can. The first question. The central character of the story is the Maharaja of. Options are A. Paltipuram, B. Mahabalipuram, C. Pratibandhapuram, or D. Madras. Time starts now. Come on. Quick. Yes, about to be up. The right answer is option C, Pratibandhapuram. It's option C, Pratibandhapuram. Good responses, students. Now, question number 2. How old was the Tiger King as a boy when he ridiculed the astrologer? Options are A, 10 days, 10 years, B, 10 days, C, 10 weeks, or D, 10 months. Time starts now. Quickly, the time is running out. Be fast. 3, 2, 1. Yes, the right answer is B, 10 days. Congratulations to all those who got it right. Keep it up, dear students. Now, question number 3. Srishti Chauhan answered it first. Srishti Chauhan, congratulations. You answered it first. And all those who got it right. Question number 3 now. The astrologer told the king that death would come from a tiger because he was born in the hour of the dash. The options are A, scorpion, B, snake, C, bull, or D, tiger. Come on, time starts now. Hurry up, students. Keep the responses coming fast. Let them come. Time is up. The right answer is C, bull. Kashish Hour of the Gupta. bull. Kashish Gupta. And the winner for this one is Kashish Gupta. Congratulations. And to all those who got it right, rest of you buckle up. Question number 4. The baby prince was later known as A, Young Jilani Tiger Bahadur, B, Maharaja Jilani Tiger Bahadur, C, Jilani Jung Jung Bahadur, or Maharaja Khiledar Jung Bahadur. Time starts now. Students, be quick. Yes, what was the correct name from the given options? It's time up. The answer is C, Jilani Jung Jung Bahadur. Let us see who is the winner. Congratulations to all who got it right. Muskan. Muskan, congratulations. And to the rest of you who got it right. Rest of you, keep it coming. Question number 5.
The chief astrologer stated that he would dash if the king killed the 100th tiger. Options are A. Change his name, cut his tuft, leave the kingdom, or kill himself. Keep trying and be quick. Speed is the key here. And the time is up. The right answer is option B. Cut his tuft. You were explained well when we were discussing it in the story. Let me see who all got it right. Manish, Priyanka was Priyanka, congratulations, Priyanka. And to all those who got it right, keep it coming. English wizards, keep going strong. Question number 6 now. After the king's proclamation, the state dash the killing of tigers by ordinary subjects. A. Promoted, B. Prohibited, C. Encouraged, or D. Permitted. Time starts now. The clock is ticking. Keep the answers coming in the chat box. Yes, I can see so many of them. Quick, quick. The time is up now. The right answer is B, prohibited. Wonderful responses, dear students. I'm sure you're loving it as much as I am. Anjali, I hope. Anjali is the first one to give the answer. I think there were so many of them, but Anjali is the winner according to our panelists. Congratulations to all. Question number 7 now. The Tiger King rejected the British officer's request for A. A photograph with a tiger, B. 50 diamond rings, C. Hunting a tiger in his state, or D. Both A and C. Hurry up. The time is up now. And the right answer is D. Both A and C. Here both the options are correct. Let us see who got it right. Ankit. Ankit, congratulations. And to all those who got it right, focus on the next one. Keep trying. Manish, next one. Manish. Okay, question number 8. Kalki, the author of the Tiger King, has used as a background the reign of A or an king dominating their subjects. A, ethical, B, just, C, rational, and D, eccentric. Your time starts now. Quickly, give your answers. A, B, C, D. Which one is the right answer? So, the right answer is eccentric, D. Let me see. Okay, Prakash has given the right answer. He's the first one to give the right answer. Question number 9. The behavior of Tiger King's subordinate to obey his orders was A, driven by fear to keep him in good humor, C, as they subordinates had no choice, and D, all of the above. Quickly, you have got just 10 seconds to give me the answer. A, B, C, or D. The behavior of the king. It was all of the above. D. The last one. Kalki brings the ironical fate of the Tiger King by proving the prophecy of the astrologer. Tiger King is fearless, that he was killed by a wooden tiger, that he died of an infection. The right answer is A, the prophecy of the astrologer. So, moving ahead. This is just an assignment for you. You just take a screenshot of this. This is home assignment. You have got 4 screenshots or 4 different portions. You have to arrange them in order. Another assignment for you. Take a screenshot of this.
You have to do these questions, complete these questions and an activity as your homework or your home assignment. Okay, students, I have given 2 links over here. 2 links हैं, एक टाइगर किंग और की समरी का है और एक यूट्यूब लिंक, दोनों यूट्यूब लिंक है, एक समरी का है और एक बहुत ही सेव टाइगर्स के ऊपर एक बहुत ही शानदार पोएम है. समरी को मैं अभी स्किप कर सकती हूँ, टाइम कम है इसलिए मैं स्किप करूंगी, बट जो एक सेव टाइगर्स पे द लास्ट विल ऑफ अ टाइगर जो हमारी एक पोएम है, लेट अस सी कि अगर इफ आई हैव सम टाइम, इफ आई कुड शो इट टू यू सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए. This is on YouTube. It has taken from NDTV. All right, so well, here's something that's going to be very close to your heart. Delhi poet Amit Dahiya Badshah's written a poem on the tiger. It's a very emotional poem on the tiger's struggle against man. Mm-hmm. Let's listen to it. When you have stolen my skin from my entity, and remove the roar from my life, O hunter, wield that skinning knife with some grace, a little skill. I too have hunted and killed many, many, many times, but every kill was a prayer in praise of the Creator. My movements were always quick, clean, merciful. Such is the way of true believers. But do you now, hunter, slice, slash, and cut clean? I pray only that you leave no part of me behind to be eaten by the jackal and the hyena. For I have ruled this forest on behalf of the Creator himself, and there is no honor in a king becoming carrion. So take the sacred color from my coat, send it back to the maker of sunsets. Take the darkness of my stripe and return it to the shadow and the undergrowth, for that is where it was obtained. Take the white from the fur of my belly and send it back to a new ice age that it returned to avenge me. Send my roar back to my maker, that he fill the heavens with my rage at this shabby end for a true king ordained by God himself. Send my claws to the young of the rich and the highborn to save them from their own nightmares. Send my teeth to Tibet, that their aspirations for freedom find new teeth. Send my bones to China, that they find a cure for the fear that builds such great walls. Send my fat to Singapore, that they learn to make a balm that is mine, not merely a name. Send my shit to the alchemists, for that is the only substance they have not yet tried in their efforts to invent gold. Hang on to my eyes, you puny murderer, that your tribe might know that you did not fell a creature beneath you, that I looked you in the eye and did not flinch when you shot me. Instead, I am turned away, released from the cancer of your footprint.
Bachchan, that's really very powerful. Very powerful and very emotional. Okay, students, I hope the message was quite clear. And now this is the topic for the next class. You are going to read and study and understand the poem Keeping Quiet of Flamingo. Here again, the guidelines for all of you. You have seen them earlier. So thank you. Thank you all. So Thank you, dear students. Oh, I hope you have joined. you surely enjoyed the session. Thank you, And Manish. Thanks a lot. do keep coming back and stay connected. Together, we are going to achieve so much more. Yes. Signing off for the session for now. And don't forget to give your feedback, students. Don't forget. And I would like to thank my team once again. Anuja, Anjali, Anu, Kiran Mehta, Manish, Rajni, Sonia, Vandana, Mohan, Srini sir, Alok sir. You are big support. Rakesh And sir. last but not Virendra sir also. Yes. And last but not the least, students, the most important of all of this activity is you. You are the pivot around which the whole program is designed, the whole experience is designed. So congratulations to all of you for wonderful participation. And I would like to thank Suraj ma'am as well. Suraj I ma'am. forgot to take her name. Suraj ma'am as well. So the team, we have such a wonderful team of teachers, facilitators, who are sometimes they are your main facilitators, your main panelists. Sometimes we are YouTube panelists, but the only endeavor is to make our classes interesting and enriching. And I hope you enjoy our classes. Keep enjoying, keep attending, and keep learning from these sessions. So wish you all very good luck. Stay home, stay safe, and keep attending your online classes. Thank you Yes, all. students, please keep posting your feedbacks. We are loving it. And do stay safe and keep attending the online classes by DOE. Thank you and goodbye for the session. Thank you, Manish. Thanks a lot. Thanks a lot for bringing all these MCQs and wonderful session questions and all. Thank you.